السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے، یعنی فرشتے حفاظت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، تو پھر بندے سے گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کی خاص دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ بندے کا نفس یعنی کہ جسم ہے۔ اب جسم کی جو بناوٹ ہے اس کے اجزاء کو دیکھیں، شروع ہو جائیں کہاں سے؟ جہاں سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش کدھر سے ہوتی ہے؟ جسم کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے ماں اور باپ کے ملنے سے۔ ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف، خامند اور بیوی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تھا کہ خامند جو ہے وہ بیوی تلاش کرے جو زیادہ بچے دینے والی بھی ہو اور نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ اور لیکن یہ فرمایا تھا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: دولت کو، خاندانی جہو جلال کو، اور خوبصورتی کو، اور دین حق کو، کہ اسلام پر چلنے والی ہے کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھا کریں کہ اسلام پر چلنے والی ہو، تینوں باتیں باقی چھوڑ دیں۔ اب جس نے شادی کی اس نے بیچ میں لالچ رکھا خوبصورتی کا، یا بھئی دولت کا، یا جاہو جلال یا خاندانی سٹیٹس کا، تو پھر اس کے اندر وہ بات تو ہوگی نا، تو وہ پھر بچے میں بھی آئے گی۔ اس لیے اگر دین پر چلنے والی آپ لیں گے تو پہلی بات پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خامد ہے وہ رزق حلال کماتا ہوگا، وہ کھانا جو کھاتا ہوگا، پانی پیتا ہوگا، وہ ضروریات جو اس کی ہیں جسم کی، ان کو حلال ذریعے سے پورا کرتا ہوگا، تو اس کے جسم کے اندر جو سپرم پیدا ہوں گے وہ بھی حلال ہوں گے۔ اسی طرح وہ عورت جو ہے، اس کی بیوی، وہ بھی حلال کھاتی پیتی ہوگی، یعنی خاوند اس کے لیے حلال کا انتظام کرے گا، تو وہ خود عورت بھی حلال کا خاص خیال رکھے گی، کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں، ہر معاملے میں حلال اور پاک کا خیال رکھے گی۔ تو پھر اس کے جسم کے اندر جو ایگ سیل پیدا ہوں گے وہ بھی حلال ہوں گے۔ جب وہ حلال اور پاک ایگ سیل جو ہے نا وہ، اور اس کے ساتھ حلال اور پاک سپرم جب ملے گا، فرٹیلائزیشن ہوگی، دونوں پاک ہوں گے، تو اس میں سے جو زائگوٹ بنے گا، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی پاک ہوگا۔ تو یہ ہے پاکیزگی کا پہلا مرحلہ جو کہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اب وہ جو خامد کا کام ہو گیا ختم، کیونکہ اس نے اپنے سپرم کو ایگ کے ساتھ ملا کے اب بیوی کو امانت بطور دے دیا۔ اب بیوی کے پیٹ میں وہ زائگوٹ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچے کی شکل پیدا ہوگی، اس سے تو بچہ بنے گا۔ تو بچہ کہاں پہ بنا؟ بیوی کے جسم میں بنا۔ اب اس کے جسم میں اس کی بڑھوتری ہوگی۔ اب بیوی کے پاس وہ بچہ امانت بن گیا۔ اب جو وہ کھائے گی یا پیے گی وہ حلال اور حرام ہوگا، تو وہ اس پر بچے پر اثر کرے گا۔ اگر وہ حلال اور پاک غذا کھائے گی اور زبان سے جھوٹ نہیں بولے گی، نیک کام کرے گی، اچھی باتیں کرے گی، یا خاموش رہے گی، اور قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، یا اور نمازیں پڑھے گی، اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلتی رہے گی، تو وہ بچے پر اس کے اثرات جمع ہوتے جائیں گے۔ اس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ ماشاء اللہ پھر امانت دار جو ماں ہے وہ اس کی امین ہوگی۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ تھا نا،
तो वो किस तरह से अमानत उन्होंने देखें दुनिया के सामने पेश की, जिसको जो कायनात के सरदार बने, है ना। देखें सही, तो आप कि जो है, आप जो अमानतदार माँ होती है तो वो कितनी अमीन होती है, तो ये देखें। और बच्चा जो है जब पैदा होता है, डिलीवरी तक जो माँ के पेट में 9 महीने रहता है, तो वो उतने अरसे में उसका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, हर काम में इस्लाम और शरीयत की हदूद में रह कर वो काम करती है। तब जो है वो बच्चे पर असरात होते हैं, और वो असरात उसकी ज़िंदगी में दीन हक लाते हैं, ईमान लाते हैं, और उस बच्चे में पाकीज़गी और तहारत और अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन हक की पहचान लाते हैं। इस तरह से उसमें ये पैदाइश, इस तरह से नुत्फ़ा हलाल होगा। फिर अगला काम, जैसे मैंने बताया, माँ का हलाल खाना पीना और हलाल काम करना और बातें करना पाक और हलाल। और क्योंकि 9 माह उसने, माँ जो है उसने अमानत का फ़र्ज़ अदा करना है, हिफाजत करनी है, और बाप का काम है हलाल खुराक हलाल कमाई से ख़रीद कर माँ को देना है। जब 9 महीने के बाद पैदाइश बच्चे की हो जाती है, बच्चा दुनिया में आ गया, तो उसको दूध पिलाने का काम शुरू होता है। अब ये दूध पिलाने का काम भी माँ का होता है, तो माँ उस वक्त हलाल खाती पीती रहेगी और बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, और खामिद जो है वो रिज़्क़ के हलाल कमा कर देगा, जिससे खाना बनेगा और खाना खाएगी। उस खाने से, और जो दवाइयाँ लेनी होगी, कोई ज़रूरत की चीज़ कभी होती है, तो वो सब कुछ हलाल रिज़्क़ से आएगा। और दवाई भी जो है उसके अंदर भी कोई अल्कोहल और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें, जो शरई तौर पर जिसकी इजाज़त नहीं है। तो पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखा जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बच्चे की जो खुराक और फिर दूध है वो भी उसको पिलाते रहेंगे, तो बच्चा जो है इस तरह से फिर बड़ा हो जाएगा। तो हलाल और पाक लेते हुए वो बच्चा फिर बड़ा होता है, और फिर वो तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। अब तालीम व तरबियत में फिर वो क्या होता है कि वो घर में माँ बाप के पास होता है, फिर माहौल का असर, हमसायों का और स्कूल का और कॉलेज का, और फिर मदरसा या जो जहाँ जहाँ जाता है उसके असरात उस पर होते हैं। तो इसलिए फिर 7 साल की उम्र हो जाती है, तो उसको लिए हुक्म है कि वो दीन की तालीम भी उसके लिए लाजमी करवाएं। और फिर 10 साल का हो जाए, अगर वो दीन की तालीम की तरफ रुझान ना हो, तो मार कर भी दीन की तालीम की तरफ रग़बत दिलाना होती है। तो इस तरह से नफ्स की पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और हलाल कमाई और हलाल खाने पीने से जिस्म को बनाया जाता है। जो जिस्म, यानी जिस्म की जैसे ईंटें होती हैं ना, ईंटें दीवार को बनाती हैं, इसलिए जिस्म की ईंटें जो हैं वो हलाल कमाई के खाने से होती हैं, बनती हैं। इसलिए फिर वो हलाल कमाई से जिस्म के सेल बनते हैं, उससे जिस्म बनता है, और फिर बंदा आगे बढ़ता है, और इस तरह से पाकीज़गी का वो एक मुजस्मा बन जाता है। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात है ताकत, एनर्जी, जिसके ज़रिए खाना पीना तैयार होता है। क्योंकि खाना बनाने के लिए भी तो ताकत चाहिए, आटा गूंदने के लिए ताकत चाहिए, रोटी पकाने के लिए ताकत चाहिए, सालन पकाने के लिए ताकत चाहिए, फिर उसे लाने के लिए ताकत चाहिए, उसे उठा कर देने के लिए ताकत चाहिए, उसे मुंह में डालने के लिए ताकत चाहिए। ये ताकत कहाँ से आती है? ये भी ताकत भी जो है ना, ये भी हलाल और पाक होनी चाहिए, और ये इसका भी असर होता है। ये दोनों ग़िज़ा और ताकत पाक और हलाल नफ्स को पाक रखती हैं, बशर्ते कि सब मामूलात शरीयत के मुताबिक कुरान और सुन्नत को फॉलो करके किए जाएं। अब जब ये नफ्स पाक रहा, तो फिर अल्लाह की रहमत हो गई। अब गुनाह बंदा कैसे कर सकेगा? अंदर से तो अब सारा पाक हो गया, कि अंदर से जब ये सूरत हाल थी तो सारा पाक है, बंदा पाक हो गया। अब अंदर से कोई उज़्व गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि वो पाक और साफ है,
और अल्लाह की रहमत से भरा हुआ है। तो इसलिए हमला अब बाहर से मुतवक्की है। बाहर फिर कौन दुश्मन है? वो शैतान है। उससे बचने के लिए आगे पीछे अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं जो हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि शैतान ने कहा था मैं इसे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने उसके दाएं बाएं और आगे पीछे फरिश्ते बिठा दिए हैं। बंदे को अपनी हिफाजत में अल्लाह ताला ने ले लिया है। फिर गुनाह कैसे हो सकता है? वो कहने वाले कहते हैं कि वो एक एक रास्ता बच जाता है, ऊपर और नीचे का। तो जब देखे बंदा कि ऊपर से शैतान का कोई असर मुमकिन है, तो बंदा नीचे चला जाए सजदे में। तो सजदे में चला जाता है तो अल्लाह ताला की फिर हिफाजत हो जाती है, बंदा हर तरह से वो बच जाता है। तो इसलिए नफ्स जो है अब उसका, अब देखें ना, नफ्स में सिर्फ अब रास्ता कौन सा रह गया? रास्ते अब दो रह जाते हैं। दो रास्ते हैं। नफ्स का रास्ता दो तरह का है। एक है उसका रास्ता मुंह से, कि मुंह में आप हराम डालेंगे तो अंदर सारा काम खराब हो जाएगा। और अगर दूसरा रास्ता है शर्मगाह का, उसमें अगर हराम से बेहयाई फहाशी करेंगे, जिना करेंगे या लवातत करेंगे, तो साफ जाहिर है कि फिर आपका काम अंदर का भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए नफ्स जो है उसका अब आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जब हराम जब उस बंदे के मुंह के करीब जाएगा उसे बदबू आएगी, और फरिश्ते, बदबू जब आती है ना तो फरिश्ते दूर हो जाते हैं, शैतान करीब हो जाता है। इसलिए जब ये जो अल्लाह ने सुराख रखे हैं, जो नफ्स का सुराख जैसे मुंह है, तो और दूसरा शर्मगाह का सुराख है, तो जब इनके करीब बेहयाई और फहाशी जाती है या हराम का लुकमा मुंह में जाता है, तो उस वक्त जो रहमत के फरिश्ते हैं, हिफाजत के फरिश्ते हैं, वो दूर हो जाते हैं और फिर शैतान करीब हो जाता है। इस तरह वो बंदा जो इतनी मेहनत से पाक साफ तैयार हुआ था, गुनाहों में गुनाहों की गिलाजत में फिर वो लिथड़ जाता है और गुनाह उससे सरजद हो जाता है, क्योंकि फरिश्ते बदबू से जो गुनाहों की हो जाती है उससे वो दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आकर गुनाह कराने में कामयाब हो जाता है। और फिर नफ्स उसको वो अपने नरखे में कर लेता है। इस तरह अगर बंदा अल्लाह के हजूर तौबा इस्तगफार की तरफ चल पड़ा तो बच गया, अगर ना चला तो फिर शैतान के नरखे में और बढ़ता गया। इस तरह फिर अल्लाह से दूर और शैतान के करीब हो गया और नाफरमानों में, फासिक बंदों में शामिल हो गया। फिर अगर ये फासिक बार बार गुनाह करता रहा और फिर अल्लाह से जुदा हो गया, फिर तौबा की तौफीक भी ना मिली, तो फिर ये ईमान से भी चला गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल, आमाल साले पर कायम व दायम फरमाए और हमारे बच्चों की तरबियत दीन हक के मुताबिक करा के हमें दुनिया और आखिरत में बच्चों की दुआ और उनके ज़रिए शिफात, उनके ज़रिए रहमत और बरकत अता फरमा के मुनव्वर फरमाए। आमीन।